nailing every video with his funny and witty observations. कंटेंट क्रिएशन, इन्फ्लुएंसर बाजी, ये सब बाद में है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पैशन इज नाउ लोगों को हंसाना. His Instagram account has over 420,000 followers. As slowly as it became a fun thing, not just work, then it became just beautiful. Or NewsX influencer A-list proudly recognizes Yuvraj Dua for influence in comedy. Hello and welcome. You're joining us on NewsX Influencer A-List. I'm Paradeep Banot, and with us today is Yuvraj Dua. With more than 420,000 followers on Instagram, Yuvraj makes short videos. He makes reels, as they're commonly called on Instagram. And these reels will make you laugh. Go ahead, go on to his page. It's called Yuvraj Dua. You can watch some of his reels. And he's with us today to tell us about his journey. Yuvraj, thank you so much, firstly, for being with us, and a very warm welcome to the show. Thank you. First of all, I loved the transition that you made from my friend to news anchor. एकदम से चटाक से मजा आ गया वो देख के. Thank you यार for having me here. It's always lovely sharing my experience with everyone. You did science, after which then there was a graduation, there's an undergraduation from Delhi University. After which then you tried UPSC, then journalism. Then you tried cricket presenting. So I've gotten the trajectory right. But then comedy was not a fluke. You were just telling me. तो पहला वीडियो क्यों, कब और कैसे? Okay, so I did my graduation, BSc Physical Science Electronics. No need to remember the name. Anyone? Then I did one drop here. मैंने UPSC किया. Then I did IIMC से diploma in English because that क्योंकि मेरे को क्रिकेट प्रेजेंटिंग में जाने का बड़ा शौक था. मुझे जतिन सबरू बनना था. जतिन सबरू पता होगा आपको. मुझे बस वहां खड़े होके बकवास करनी थी क्रिकेट के बारे में, जेन्युइन एनालिटिकल बकवास. सो उसके बाद यार एक पॉइंट आता है ना कि दिल कहता है कि इसमें भी शायद उतना मतलब एक 100% पैशन नहीं लग रहा. तो मेरे को हमेशा यार घर पे शुरू से क्या होता है, कॉमेडी हैज बीन सेकेंड नेचर टू एवरीवन इन आवर हाउसहोल्ड और मोस्ट पीपल. और हमारे में तो ज्यादा ही था क्योंकि हम बातचीत ही मजाक में करते. ये हमारी भाषा होती थी कि हम मजाक में बात करते थे. हमें एक दूसरे की काटने के अलावा कुछ नहीं आता. जितने भी दोस्त रहे, जितने भी घर वाले, मोस्टली घर वाले. तो आई सेड व्हाई नॉट डू दैट, बिकॉज आई लाइक्ड द कैमरा बिफोर. कैमरा मुझे पसंद था. यूज्ड टू stay in front of the camera, analyze the game, bring humor into it always. But then I thought कि इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स हैं यार, ये जो कर रहे हैं वो मैं क्यों नहीं कर सकता. और मुझे हमेशा मतलब कंटेंट क्रिएशन, इन्फ्लुएंसर बाजी, ये सब बाद में है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पैशन इज नाउ लोगों को हंसाना. उसका एक बार चस्का चढ़ जाए ना तुम्हें लोगों को हंसाने का और अपनी बातों से उनके चेहरे पे एक स्माइल लाने का, जैसे आप अभी स्माइल कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रही है. बस यही चेहरा में कैप्चर करके ऐसे मिलियंस ऑफ पीपल में ये फैलाना चाहता हूँ. ओनली पैशन इज दैट. सो आई स्टार्टेड ऑन I uploaded my first video on 22nd March 2021. Okay. हाँ वैसे ही थी छोटी मोटी 5-10 सेकंड की वीडियो थी. उसके बाद मैंने ऐसी ही वीडियो डालना शुरू किया. बट देन आई स्टार्टेड एज you learn with the process. There is no other way of content creation. You keep uploading videos, you check the response, and you keep giving क्या बोलते हैं, subconscious feedback to yourself. ये सही है, ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा. कुछ सही गलत नहीं होता. ये होता है कि मेरे लिए क्या काम कर रहा है, मेरे लिए क्या नहीं काम कर रहा. Then I started getting more creative. I started giving more time to it, and as slowly as it became a fun thing, not just work, then it became just beautiful. और जब आपके पास वो हो ना एक एक्सटर्नल मोटिवेशन हो, एंगेजमेंट और फॉलोअर्स की, तो तुम अपने आप काम करने लग जाते हो. So you were telling me, Raj, that सबसे पहले video that you posted, उस पे you had some 500 views. It was somewhere around 500 views, right? And then after that, you continued to make videos. One thing that we have learned over the course of this show is that all content creators and influencers say कि content churn out करते जाओ.
the more content that you put up, the higher the chances that you will be successful. But at a time when you're facing a period where you're not getting as much engagement, how difficult is it to get out of the rut, wake up every morning, and then put out videos once again when you're not getting that engagement? Where do you find that motivation then? So I am a firm believer of belief. Mm, First of all, if you have the belief in your ability, I had belief that I am producing good content. mm, Good content, above par content, that should resonate with you. I had this belief कि मैं काम अच्छा कर, mm, वो अलग बात है, मैं इतनी आंखों के सामने भी चमका नहीं हूँ, थोड़े बहुत है, 15-20-22 हजार फॉलोअर है, लेकिन मेरे को ये पता था मेरा मेरा काम अच्छा है, और अगर मैं ये कंसिस्टेंटली करता रहूंगा ना, तो मैंने आई हैड नो टू थॉट्स अबाउट माई बिलीफ, माई फेथ इन माई, mm, आई विल डू इट। बीच बीच में सेल्फ डाउट आता है, बस उस वक्त अपने आप को समझाना होता है कि again, during the course of my journey, I have learned one thing: the only truth of life is consistency, but not कुछ भी अनशर्ट कंसिस्टेंसी। अपलोड करने को तो कुछ भी करते रहो रोज, mm, लेकिन good, decent, and honest work which you believe is good enough for the audience to watch. If you keep doing it with consistency, you will get there one day. I don't know if I'm there, but I am trying. तो consistency बहुत जरूरी है, और self doubt आता ही आता है। mm. That is how the human mind works. There There will are, be self-doubt. there Yeah. are content creators also out there who are doing comedy. Hmm. So with the kind of competition that currently exists, you said that cricket may you probably did not have as much technical ability or technical expertise, which is Yeah, well played. that you lacked. But as far as the internet is concerned, it's an ocean. I mean, there are content creators with a dream similar to yours who want to be successful, and in fact, a lot of people who want to do comedy. How do you stand out then? How do you kind of get an audience loyal to you? इंटरनेट में यही फायदा है। अब अपना तुम एक वो एस्टेब्लिश कर सकते हो कि अपना हट के कुछ भी कर सकते Yeah. हो, कि तुम्हें तुम्हें कोई गाइडलाइन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि पैर किसी तरफ निकालना है, कि जब बॉल ऑफ स्टंप के बाहर हो तो ये टेक्निक होनी चाहिए, लेग स्टंप पे तो ये टेक्निक होनी चाहिए। वैसे ही क्रिकेट में भी तुम अपनी नीचे एस्टेब्लिश कर सकते हो, बट वहाँ एक स्पेसिफिक गाइडलाइन होती है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि ऐसे तो खेलना ही है। Mm. बट इन कंटेंट यू कैन प्ले अराउंड एज एनीथिंग। मेरे दिमाग में ये, क्योंकि हमारा सीन पता क्या है, सिंस आई एम अ फेयरली ऑफ कोर्स मिडिल क्लास पर्सन, मिडिल क्लास लोगों की ऑल ओवर द वर्ल्ड या ऑल ओवर द कंट्री एटलीस्ट हमारी जिंदगी बहुत सिमिलर होती है। तो जब मैं कोई अपना एक्सपीरियंस एक्सप्रेस करता हूँ ना, तो वो मोस्टली हर बंदे ने एक्सपीरियंस किया ही होता है। कि Mm. अगर मैं बोलूंगा कि मेरे को मम्मी से रोज 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 डांट पड़ती है क्योंकि मैंने टॉवल बाहर नहीं रखा, बेड पे रह गया गीला टॉवल, तो वो आपने भी करी होगी, कोई साउथ में बैठा होगा, झारखंड में, बिहार में, या हरियाणा में बंदा बैठा होगा, उसने भी एक्सपीरियंस करा हो। तो Mm. दैट इज वेयर द रिलेटेबल फैक्टर कम। Okay. even if you're probably your jokes are not of the highest quality, stand up quality, जैसे stand up quality jokes होते हैं which induce a explosive laugh Yeah. एकदम से, then there the real relatable factor comes in कि can you be relatable enough, तो जो बंदा वो देख रहा है क्या वो resonate करेगा आपसे कि हाँ मेरे साथ भी ये हुआ है, and I have an incentive to share the video on my story. Mm. That should be, I think, the basic goal of content creation, will to get engagement. Will people share my video on their story? But कोई लोगों के लिए वो भी motivation नहीं होती, they just go out there and follow what their mind says and what comedy is to them. So Yeah. tell me something, Yuvraj. When you have when you see your trajectory of growth on Instagram or be it YouTube, etc., what is the one thing that strikes you? मतलब एक चीज जो कि आपके जहन में अभी तक बहुत ही ज्यादा फ्रेश है कि अच्छा वो एक वीडियो था जो कि मुझे याद है, या फिर एक ऐसा इंसिडेंट जो मतलब that has been the most memorable for you up until now in your journey. Most memorable इंस्टा पे यार है तो कई,
है तो कई बहुत अच्छे मोमेंट्स मैंने देखे हैं इंस्टा पे यार। एक बार मेरी वीडियो पर 10 मिलियन व्यूज आ गए थे यार, मेरे को यकीन नहीं हुआ कैसे हो गया। एक मैंने वीडियो डाली थी, इंस्टाग्राम बायो होते हैं लड़कों के, जिसमें मैंने थोड़ा हंसी मतलब काफी हंसी मजाक करा था, उसमें 10 मिलियन व्यूज आ गए थे और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो गया। तो उस दिन एक ऐसा मोमेंट होता है, ऐसा लगता है कि भाई साहब वो हो गया, अब दुकान बंद कर दो, जितनी सजावट होनी थी होगी, जितनी बिक्री होनी थी हो गई, हमारी इकोनॉमी खत्म। हमने अपने गोल एस्टेब्लिश कर लिए हैं। तो एक मोमेंट वो था। बाकी और क्या रहे हैं मेमोरेबल यार, व्हेन आई हिट 100K फॉलोअर था, एक वो अलग ही फील थी, क्योंकि 200 300 400 भी हुए हैं, लेकिन एक 100 का जो फिगर होता है ना, 100 के जैसे हिट हुए थे, तो मेरे घर वालों ने एक ड्राइंग रूम में वो बलून लगाए थे, एक 100 वाले, और जैसे ही मैं घुसा था पार्टी पॉपर फोड़ा था मेरे मुंह पे, तो वो बहुत ही जबरदस्त फीलिंग थी यार कि 100 1 लाख का जो फिगर होता है ना, लाख क्रॉस कर लेते हो, तो वो बहुत तगड़ा था। और वो मेरे ख्याल सबसे बड़ी मोटिवेशन थी इस चीज को कंटिन्यू करने की, क्योंकि जब तुम छोटे स्टेज पे होते हो ना, 50 60 70 50% ऑफ भी मिल रहा हो किसी दुकान में तब भी मजा नहीं आता, 60 70 मिल रहा हो तब मजा आता है, लेकिन 100 के आंकड़े में जब तुम पहुंच जाते हो ना, 1 लाख, तो वो बड़ी तगड़ी मोटिवेशन थी, और वो बड़ा खुशनुमा पल था हमारी जिंदगी का। एक वो, और एक बार 10 मिलियन व्यूज आए थे। बाकी I think I think those are two memorable enough moments for मेमोरेबल ना। yeah. So before we let you go, and we've run out of time, Yuvraj, I need to ask you one last question. What is the future? What do you see as the future for you, for your channel, for your handle on Instagram? What is it that you would like to do next? What is it that I'd like to do next? I'd like to यार, मेरे को ना सही सही बताऊं तो जिस हिसाब से मैं कंटेंट बनाए जा रहा हूँ ना, एक ही तरह भौंकने जा रहा हूँ। कैमरा खोला, 15 20 सेकंड 30 सेकंड उसी चीज में भौंक दिया। आई वुड लाइक टू मेक अ ट्रांजिशन, आई वुड लाइक टू मेक स्केचेस, आई वुड लाइक टू मेक मोर वैसा कंटेंट जो जिसमें ये ना सोचूं मैं कि लोगों को पसंद आएगी। अभी मैं बहुत कट्टर रूप से सोचता हूँ, बहुत रिजिड रूप से सोचता हूँ कि ये लोगों को पसंद आएगा तभी मैं पोस्ट करूँ। बट अब शायद एक ऐसा बेस एस्टेब्लिश हो चुका है मैंने कैन प्ले अराउंड विद इट। एंड ऑफ कोर्स आई एम आई एम इन अ बिट ऑफ अ स्टैग्नेंसी पीरियड, इन क्या बोलते हैं उसे, मेरे फॉलोअर्स के हिसाब से मैं थोड़े स्टैग्नेंसी पीरियड में हूँ, 400 420 तक अटके पड़े हैं। आई वुड लाइक टू चेंज दैट, but I would love, for me the future would be, I think I would like to collaborate with other people, क्योंकि साथ है तो बात है, which I haven't done in a long time। मैंने कोलैबोरेट नहीं करा, एक बार भी नहीं करा है। तो मैं दूसरे लोगों के साथ कंटेंट बनाना चाहूंगा, थोड़ा अपने माइंड को ओपन अप करना चाहूंगा, फ्रेश करना चाहूंगा, ताकि और लोगों के साथ काम करूंगा तो जो मेरा क्रिएटिव कैनवास है वो शायद बढ़े। So my next step would be to collaborate with other creators. Awesome. Thank you so much, Yuvraj, for being with us on NewsX Influencer A-List. It's been an absolute pleasure. Sorry for boring you so much. No, absolutely not. It was a very interesting interview, in fact, and I'm sure that our viewers are going to give a lot of inspiration, motivation to create content on the internet from the interview. Thank you, Yuvraj, for being with us. More power to you. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.